क्लास 9 का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के कंटेंट्स हम देखने वाले हैं. सो लेट्स सी. The first slide will tell you the definition of force. Force is a push or pull on a body, that is called force. What are the characteristics of force? Force has both magnitude and direction, making it a vector quantity. जो भी physical quantity में magnitude और direction दोनों होता है उसे हम force कहते हैं. It is measured in the SI unit of Newton, that is denoted by N. It is represented by the symbol F. SI unit of force. SI unit of force, as said, is Newton. Since force is equal to mass into acceleration by Newton's second law of motion, so we also have another unit of force that is called kg meter per second square. The unit of mass is kg and the unit of acceleration is meter per second square. If force, mass and acceleration is taken as one unit, therefore we can say 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square. Thus, if you will be asked, define 1 Newton or 1 unit of force, so you have to define like this, as the amount of force that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट जिसकी मास 1 kg है और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, वो 1 न्यूटन के इक्वल होगी. Next, what are the effects of force? It can change the speed of a body. When an object is in rest, it will start moving. If an object is moving, it will come to rest if some external force is applied on it. So it can change the direction of force and laws of motion of a body. It can change the shape of a body. बॉडी की शेप भी चेंज की जा सकती है. सपोज एक गूंदी हुई आटा है, उसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आप उसको ट्रायंगुलर शेप में, आप उसको सर्कुलर फोर्स शेप में, एंड वट एवर शेप यू वांट टू गिव इट टू, यू कैन गिव बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. Balanced forces, if the resultant of applied force is equal to 0, it is called balanced forces. अगर दो तरफ से फोर्स लगाई जा रही है और दोनों तरफ का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है फोर्स की, वो अगर 0 है तो बैलेंस्ड फोर्स है. और कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है जब बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होता है. सो व्हेन वी मूव और व्हेन वी वॉक, व्हेन वी रन, there is no balanced force that is acting on us. What force? It is unbalanced. So for example, in the tug of war game, when the force applied by both team is equal in magnitude, then the rope doesn't move in either side. किसी भी डायरेक्शन में रोप जो है मूव नहीं करेगी. This is due to the balanced force in which the resultant of applied force comes out to be 0. तो जब रिजल्टेंट जो होगा फोर्स, उसकी वैल्यू अगर 0 है तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करने की पोजीशन में नहीं रहता है. What are the characteristics of balanced force? Balanced force do not cause any change of state of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज नहीं कर सकता. बैलेंस्ड फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, लेकिन डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट होता है. बैलेंस्ड फोर्स कैन कॉज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज ला सकता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्रेस अ बलून फ्रॉम अपोजिट साइड्स, द साइज एंड शेप ऑफ बलून इज चेंज्ड. यानी कि बैलेंस्ड फोर्स से सिर्फ एक काम किया जा सकता है, दैट इज वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल स्टडी अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्सेस. If the resultant of applied forces are greater than 0, the forces are called unbalanced force. अगर 0 से ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स किसी चीज पे अप्लाई हो रही है तो इसका मतलब वो कैसा फोर्स है? It is unbalanced force. To move an object, unbalanced forces are to be applied from the opposite direction. In case of unbalanced force acting on a body, it moves in the direction of a greater force. अगर दो तरफ से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स आ रही है और जिस तरफ ज्यादा मैग्नीट्यूड की फोर्स होगी, द ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स और गो टुवर्ड्स और मूव टुवर्ड्स दैट फोर्स. सो अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड इट विल आल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. So what are the examples? By seeing these two examples, we will understand. In first picture, what we can see, there is a block on which two forces are being applied from two sides, but the magnitude of the force are equal. So F1 is equal to F2. So this object or this block will not move in any direction. In second example, we can see that the magnitude of the F1 is greater than F2. So object will move towards the applied force which is being applied towards F1. F1 की तरफ से जो अप्लाई फोर्स हो रहा है उसकी तरफ जो है ऑब्जेक्ट मूव करेगी.
So balanced forces, if two forces act on a body in opposite direction and if both the forces are equal, then the resultant force acting on a body is zero. Such forces are called balanced forces. In case of unbalanced forces, if two forces acting on a body in opposite direction and if one force is greater than the other, then the resultant force is not equal to zero, and these type of forces are called unbalanced force. What is the meaning of frictional force? Frictional force, force of friction is the force which opposes the motion of an object over a surface. जो motion को oppose करती है. A ball rolling on ground gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. कोई बॉल जो है वो अगर रोल कर रही है धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाती है. क्यों होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऊपर लग रही है, इसकी वजह से वो रुक गई. If we stop pedaling a bicycle, अगर आप साइकिल चलाना छोड़ देंगे, it gradually slows down and comes to a stop due to force of friction. Again, force of friction will act on it and your pedal will stop. An object with uniform motion will continue to move with uniform motion if the forces acting on it are balanced. एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी अगर जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो कैसी है नेचर में, वो बैलेंस्ड है. If an unbalanced force acts on the moving body, then its speed or direction changes. क्योंकि जो स्पीड और डायरेक्शन चेंज होती है वो किस फोर्स की वजह से होती है? वो सिर्फ अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से होती है. If the unbalanced force is removed, then it will continue to move with the speed it had acquired till then. अगर आपने अनबैलेंस्ड फोर्स को हटा दिया है तभी भी वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स आकर के उसको रोकता नहीं है. क्यों वो मूव करती रहेगी? क्योंकि उसने कुछ स्पीड एक्वायर कर लिया था, उसने कुछ मोमेंटम एक्वायर कर लिया था, जिसकी वजह से आपने स्टॉप भी कर दिया है, फोर्स कोई लग नहीं रही है, फिर भी उसके ऊपर इंटरनल कुछ फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो अभी मूव कर रही है. नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट which has a mass 20 kg but the acceleration is 0. What will be the value of force? So by the formula of F is equal to mass into acceleration, you can see the value of force is 0. What we can say here, that if an object is moving with uniform motion means there is no change in velocity. If there is no change in velocity, there will be no acceleration. So the value of A will be 0. So the total magnitude of force will also be 0 even if the object have got some mass. ऑब्जेक्ट के पास मास है फिर भी फोर्स की वैल्यू 0 क्यों हो गई? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था, चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रही थी. सो आप ऐसे भी समझ सकते हैं. न्यूटन हैज गिवन अस 3 लॉज ऑफ मोशन. वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट लॉ. न्यूटन सेड एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless compelled to change that state by an applied force. मीन्स एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी. कब तक? until and unless an external force is being applied on an object. और ये जो टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि अपने कंडीशन में ही रहने के लिए, रेस्ट में है तो रेस्ट में और मूव कर रही है तो मूव में, दिस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ inertia. So this is an example which has been shown in NCERT textbook also. So moving next. Newton's first law of motion के example ये भी है कि ये फुटबॉल है. Until it will be kicked, it will be at its rest condition. यहाँ पे किक किया जा रहा है, it will start moving and वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, inertia and mass. How inertia is related to mass? A body at rest continues to be at rest and a body in motion continues to be in motion. This property of a body is called its inertia. ये property को हम inertia कहते हैं. And inertia is measured by the magnitude of force required to change the state of a body. ये कैसे हम मेजर करते हैं इनर्शिया को? कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आपको लगाना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए. सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए हेवियर बॉडी इज मोर. अगर आप किसी हैवियर बॉडी को मूव कराना चाहते हैं देन द अमाउंट ऑफ फोर्स यू नीड टू अप्लाई इज ग्रेटर. एंड इफ यू वांट टू मूव एनी लाइटर ऑब्जेक्ट द अमाउंट ऑफ फोर्स यू नीड टू अप्लाई इज वेरी लेस, कंपैरेटिवली लेस. सो द मास ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. तो किसी भी बॉडी की जो मास है वो किससे मेजर होती है? इनर्शिया से. ठीक है.
यानी कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. हेवियर द मास, heavier will be its tendency to remain in its state. Yes. So there is a question which is in NCERT textbook. Which of the following has more inertia? कौन सी बॉडी की इनर्शिया ज्यादा होगी? एक रबर बॉल है और एक स्टोन है, दोनों का साइज सेम है, तो जिसकी मास ज्यादा होगी उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी. यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? स्टोन ऑफ द सेम साइज. बी में अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन. Which has got more mass? Train. So obviously the answer will be train. A 5 rupees coin and a 1 rupee coin. So the mass of 5 rupees coin is greater, so the inertia will be greater. So there is a question which is here. Why do you fall in the forward direction when a moving bus brakes to a stop and fall backward when it accelerates from rest? जब कोई भी बस स्टार्ट होती है तो फिर हमारा मोशन चेंज हो जाता है जो बस में बैठे हुए हैं. सो व्हाई डज इट हैपन? दिस इज ऑल ड्यू टू इनर्शिया. ड्यू टू इनर्शिया आवर बॉडी वांट्स टू बी इन सेम कंडीशन. वो सेम कंडीशन में रहना चाहती है, वो मूव नहीं करना चाहती है. आपका जो लोअर बॉडी सरफेस है वो जब बस मूव करती है तो आपका लोअर बॉडी सरफेस मूव करने लगता है, लेकिन अपर बॉडी पार्ट जो है वो क्या होता है? वो रेस्ट में रहना चाहता है. इसीलिए जैसे ही मूविंग बस जो है वो ब्रेक करती है तो हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब ये रेस्ट से स्टार्ट होती है तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं. सो दिस इज द रीजन, एंड रीजन ऑफ बोथ द क्वेश्चन इज ड्यू टू इनर्शिया. इनर्शिया की वजह से जब हम पहले रेस्ट में बैठे हुए थे और बस अचानक से स्टार्ट हो गई, तो बस जब स्टार्ट हो गई तो हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो मोशन में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो मोशन में नहीं आया है. वो इनर्शिया की वजह से अपने ही पोजीशन में है, इसलिए हम बैकवर्ड की तरफ फॉल करेंगे. और जैसे ही बस मूव कर रही थी लेकिन अचानक से ब्रेक लगी, बस रुक गई, तो हमारा लोअर पार्ट जो है वो तो स्टॉप हो गया, लेकिन अपर पार्ट, अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी जो है वो अभी भी मोशन में है, तो इसीलिए वी विल फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. So these are the two answers of these two questions. Again there is a question. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. अगर किसी भी ट्री के ब्रांच को अगर आप बहुत तेजी से विगरसली यानी बहुत ज्यादा फोर्स लगा के शेक करते हो तो वो क्यों उसमें से लीफ जो है वो टूटने लगती है? क्योंकि ब्रांच को आप शेक कर रहे हो, ब्रांच हैज कम इनटू मोशन, but the leaves are not in motion, so due to inertia they do not want to get detached. But when we apply lots of force, lot of external force, it get detached and fall down on the surface. दूसरा क्वेश्चन है, when a carpet is beaten with a stick, जब एक कारपेट को स्टिक से बीट करते हैं तो डस्ट बाहर आ जाती है. क्यों हो जाती है? अगेन when we are beating, the carpet will come in the motion, but the dust which is present inside the carpet, due to inertia it want to come in its position or in its state, due to which they do not want to come out. लेकिन जब आप ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो वो बाहर निकलती है. So due to inertia it did not want to change its position. Third is, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? एक बस पे जो सामान हम रखते हैं उस सबको हम टाई करके रखते हैं रोप से. क्यों? क्योंकि जब बस मूव करती रहती है तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आप मूव करके उसको टाई करके नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगी? ये भी मोशन में आ जाएगी एंड इट कैन कम डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस टू द रोड. तो आपका सारा सामान गिर जाएगा. सो इन ऑर्डर टू protect your luggage you have to tie it with rope, otherwise inertia की वजह से ये क्या करेगी? बाहर निकलने की कोशिश करेगी. तो अब नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम. सो द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी ये बताती है कि बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम होगा. अगर मास कम होगी लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो again the value of the momentum will be very higher, because momentum is a physical quantity which is defined as the product of its mass and velocity. सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना तो सिर्फ वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, दोनों के प्रोडक्ट पे करती है. So change in momentum is, it is defined as the difference between final momentum and initial momentum. फाइनल मोमेंटम यानी फाइनल वेलोसिटी लेंगे तो मास ले लेंगे m एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? v, और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी में से माइनस करेंगे उसको
तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होती है u. सो mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t. वी कैन टेक m को बाहर निकाल सकते हैं, देन v माइनस u अपॉन t. सो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज गिवन बाय दिस वैल्यू m v माइनस u अपॉन t. ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाया गया है. एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास 20 kg है और उसकी वो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 80 मीटर पर सेकेंड. आपको मोमेंटम पता करना था, आपने पता किया 1600 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्योंकि मोमेंटम की यूनिट होती है kg मीटर पर सेकेंड, मास की यूनिट kg और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड. दूसरा एक एग्जाम्पल है जिसमें मास है 100 kg, वेलोसिटी फिर अगेन सेम है, वेलोसिटी सेम ही है दोनों की, लेकिन देखो मोमेंटम चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती है. कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया इसके मोमेंटम में, यानी कि इसका मोमेंटम कितना हो गया 8000 kg मीटर पर सेकेंड. तो उसके मोशन में इतना चेंज आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो ऑब्जेक्ट की मास कितनी है और वेलोसिटी कितनी है. कीपिंग द वेलोसिटी सेम, अगेन वी आर सेइंग दैट द मोमेंटम इज चेंज्ड इन बोथ द केसेस. आपके लिए 3 एग्जाम्पल दे के रखा है कि मास दी हुई है 200 kg और वेलोसिटी है 80 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड बिकॉज मीटर पर सेकेंड इज SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. सो दीज 3 you will do in your notebook. Next, application of momentum. The SI unit of momentum is kilogram meter per second. So what is the application? A small bullet. एक बुलेट जो होती है, बंदूक के अंदर जो गोली होती है, वो उसकी साइज बहुत छोटी होती है, स्मॉल होता है, मास बहुत कम होता है, बट इट कैन पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ ए मैन एंड किल हिम व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन बिकॉज इट हैज लार्ज मोमेंटम ड्यू टू इट्स ग्रेट वेलोसिटी. क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करती है, इसलिए उसका मास बहुत कम होने के बाद भी इसका इफेक्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, मोमेंटम बहुत ज्यादा होगी ड्यू टू इट्स ग्रेट वेलोसिटी. So again, second example is a person gets severely injured when hit by a fast moving vehicle. जब एक फास्ट मूविंग व्हीकल मूव करती है तो सीवियर इंजरी होती है, विच इज ड्यू टू द मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू लार्ज मास एंड हाई वेलोसिटी. जब एक ट्रक से किसी को इंजरी हो जाती है, हिट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई इंजरी होती है क्योंकि ट्रक की मास भी बहुत ज्यादा होती है और वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ होगा. So, application of Newton's second law. न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t. सो व्हेन वी स्टॉप द बॉल ग्रेजुअली, इसमें आप एक चीज देखेंगे कि t टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. सो इफ यू आर इंक्रीजिंग द टाइम, सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल बी लेस. अगर आप टाइम इंक्रीज कर रहे हैं किसी भी काम के लिए तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा. अगर आप टाइम को कम कर रहे हैं, तुरंत किसी चीज काम को कर ले रहे हैं बिना टाइम को गवाए, तो आपका फोर्स का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, वो ज्यादा होगा. तो देखते हैं कैसे. व्हेन वी स्टॉप द बॉल ग्रेजुअली, अगर आप कोई बॉल आपकी तरफ आ रही है, आपने तुरंत उसको स्टॉप कर लिया तो आपने टाइम बहुत कम लगाया तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा. जब आपने उसको थोड़ा सा टाइम लगाया कैच करने में तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो गया, आपको चोट कम लगेगी. सो वी नीड टू अप्लाई लेस फोर्स. दिस इज इजी एंड सेफ. इफ वी स्टॉप द बॉल सडनली, अगर आपने तुरंत उसको कैच कर लिया, वी नीड टू अप्लाई लार्ज फोर्स विच इज डिफिकल्ट एंड कैन ऑल्सो इंज्योर आवर हैंड. इन हाई जंप के केस में अगर सरफेस हार्ड है तो आप क्या करेंगे, आप स्लाइड करके नहीं जाएंगे तो आपने टाइम ज्यादा उसमें नहीं लिया तो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, आपको बहुत ज्यादा चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है. एथलीट्स बॉडी चेंजेस वेलोसिटी इन वेरी लेस टाइम इफ द सरफेस इज हार्ड. देन if the surface is hard, athlete's body changes velocity in very less time. और अगर टाइम लेस होगा तो फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा. So large force acts on his body due to which he may get injured. If the surfaces are soft, अगर सरफेस सॉफ्ट बनाया है, मिट्टी में थोड़ा सा बालू वगैरह डाला है सॉफ्टनेस को इंक्रीज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, एथलीट्स के बॉडी को थोड़ा वेलोसिटी को चेंज करने का टाइम मिल जाएगा, यानी थोड़ा सा वो स्लाइड करके जाएगा एंड देन लेस फोर्स एक्ट्स ऑन हिज बॉडी विच इज सेफर टू हिम. न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहां पर यह समझना है कि जो भी एक्शन हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. व्हाट इज इक्वल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल. व्हाट इज अपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज
अपोजिट। जब आप किसी दीवार पे एक धक्का लगाते हैं तो आपके ऊपर भी थोड़ी सी चोट लगती है, जितनी जोर से आप धक्का लगाओगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा फोर्स का, यानी कि इक्वल हो गई फोर्स की मैग्नीट्यूड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपको जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। So for every action there is equal and opposite direction. Keep in mind equal is magnitude of force and opposite is direction of force. Newton's third law of motion states that there is always reaction for every action in opposite direction and of equal magnitude. That is, action and reaction forces are equal and opposite. Now this is clear. So we will move. न्यूटन्स थर्ड लॉ ये हमने देख ही लिया है। न्यूटन का थर्ड लॉ, अ फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट अलोन। फोर्स जो है अकेले नहीं रहती है, पेयर में रहती है, यानी कि आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो यानी कि दूसरी चीज है, पेयर में है, ठीक है। तो अ फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट अलोन, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ए सेकंड ऑब्जेक्ट, द सेकंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। So these two forces are equal in size and opposite in direction. Yes. Application of Newton's third law of motion, ये सब बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आता है। Recoil of gun, when bullet is fired from gun, जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, it moves ahead, आगे की तरफ जाती है। By the Newton's third law of motion, the bullet will also apply some force on the gun in backward direction. जब आप बुलेट जो है फायर होगी गन से तो वो आगे की तरफ जाएगी, तो गन भी तो पीछे एक मूवमेंट करेगी, रिएक्शन करेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्वाइल ऑफ गन। ड्यू टू दिस फोर्स गन मेक्स मूव्स बैक गिविंग अ जर्क टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन। जो चला रहा है उसके शोल्डर पे थोड़ी सी जर्क आएगी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, रिक्वाइल ऑफ गन। हियर गन मूव्स बैक ओनली बाय स्मॉल अमाउंट ड्यू टू इट्स हेवी मास। जो मास अगर ज्यादा है तो गन जो है बहुत कम फोर्स के साथ पीछे आएगी। वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इज एबल टू वॉक ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इन द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड ऑल्सो पुशेस द पर्सन विथ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जब हम मूव करते हैं तो हम ग्राउंड को पुश करते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लगता है और हमारा जो पांव जो है वो आगे की तरफ जाता है। सो ड्यूरिंग वॉकिंग अ पर्सन पुशेस द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, हम ग्राउंड को पीछे की तरफ जाते हैं और हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो क्या है, इक्वल फोर्स है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। दिस इनेबल्स हिम टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट द पुश। स्विमिंग इन वाटर, जब हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी को पीछे धकेलते हैं तो हम आगे मूव करते हैं। दिस इज अगेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। प्रोपल्सन ऑफ बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोट भी जो आगे मूव करती है पानी में तो सेलर क्या करता है, अपने ओर से पानी को पीछे धकेलता है तो बोट जो है आगे जाती है। तो इस तरह से इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में जब मोशन होती है तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये एक नया टर्म है। इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर, अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं with no external force, their final momentum remains same as initial momentum। यानी कि टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले जब वो दोनों एक दूसरे से हिट करते हैं तब, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो दोनों सेम रहेगा। कैसे, अभी देखते हैं। सपोज मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम देखेंगे। सपोज वी हैव बीन गिवन टू ऑब्जेक्ट्स विच इज ए एंड बी, ईच ऑफ मास m1 and m2। These are moving initially with velocities u1 and u2, striking each other after time t। टाइम t के बाद एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, मूविंग विद वेलोसिटीज v1 and v2 रेस्पेक्टिवली। पहले उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 थी, बाद में जब वो कोलिजन हो गया तो उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई v1 and v2। सो फर्स्ट इमेज इज फॉर बिफोर कोलिजन, जो बीच वाला है ड्यूरिंग कोलिजन, and last वाला जो image है that is for after collision। So we know that momentum is equal to mass into velocity, therefore initial moment of object A is m1 u1, initial moment of object B is m2 u2, final momentum of object A is m1 v1, final momentum of object B is m2 v2। So now rate of change of momentum will be what, change in momentum divided by time taken। तो टाइम टेकन दोनों में t है तो t के इफेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर देंगे, t और t कैंसिल हो जाएगा। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सो दिस इज हाउ वी विल राइट दिस।
अभी न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है हम देखते हैं, इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैन बी रिटेन एज v माइनस u डिवाइडेड बाय t। तो इस तरह से अभी आप समझेंगे कैसे होता है। अभी न्यूटन का थर्ड लॉ आपको कहता है कि फोर्स दोनों तरफ से अगर लग रही है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी। उस डायरेक्शन को अपोजिट लिखने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। सो नाउ F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप यहाँ पुट करेंगे m1a1 पहले ऑब्जेक्ट का हो जाएगा और एक्सेलरेशन को आप v माइनस u डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा इट विल बी m2a2 और a को आप एक्सेलरेशन को चेंज करके v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t लिख सकते हैं। अब दोनों को आप एक साथ लाएंगे ब्रैकेट से m1v1 माइनस mu u1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस फोर्स था इसलिए माइनस लगा देंगे, माइनस m2v2 माइनस m2u2। अभी आपको क्या करना है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसको एक साथ रखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको एक साथ रखिए। यहाँ पे हमने वही किया है m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि ये माइनस में था जब ये लेफ्ट साइड में गया तो ये प्लस में आ गया। ठीक है, अभी इसी तरह से m1u1 प्लस m2u2 जो कि माइनस में था इस तरफ माइनस m1u1 था, जब राइट साइड में जाएगा तो वो m2u2 हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव गॉट, we have got m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2। ये आपका प्रूव हो गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होता है। सो दिस इज, ये यहाँ पे आपको यही बताया गया है एफ ए बी यानी कि ए ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कितना फोर्स लगाया जा रहा है, इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे m1u1 प्लस m2u2 जो है वो इक्वल हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2 के। यानी आपको फाइनल वेलोसिटी को एक तरफ रखना है दोनों ऑब्जेक्ट का, और दोनों ऑब्जेक्ट का जो है इनिशियल वेलोसिटी को एक साथ रखेंगे तो आपकी ये चीज क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड